Hello students, our today's topic is circulatory system of स्कोलियोडॉन। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। स्कोलियोडॉन का ब्लड कैसा होता है। सो द ब्लड ऑफ स्कोलियोडॉन इज रेड कलर्ड and it has plasma and corpuscles. So plasma is colorless liquid, whereas the corpuscles are having two things, that is, first one is erythrocytes or red blood corpuscles. It is nucleated and having hemoglobin. Second one is leukocytes, that is colorless and it is amoeboid, means they don't have any shapes, and these are the phagocytic cells. So leukocytes are phagocytic. The blood of Scoliodon has a specificity of retaining excessive amount of urea, that is near about 2.25% in plasma. So first of all, we will know about the atrial system. So atrial system is actually oxygenated blood from gill to body parts. So atrial system में जितने भी आर्टरीज होते हैं उनका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल से लेकर के वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है ये एट्रियल सिस्टम. सो इट हैज़ फॉलोइंग types of arteries. First is afferent branchial arteries, that is of 5 pairs, and second efferent branchial arteries. So these efferent branchial arteries are have the role for the oxygenated blood collected from the gills. So efferent branchial arteries are in 9 pairs. And these 9 pairs have 2 groups. First group is of 8 arteries, 8 pairs of arteries, that is the complete loop, and only a single pair is half loop. So that is the last one. Last वाला जो इसका होता है efferent branchial artery, जो लास्ट वाली होती है वो हाफ लूप होती है, कंप्लीट नहीं होती है, ये आपको याद रखना होगा. थर्ड इज आर्टरीज ऑफ द हेड रीजन एंड फोर्थ वन इज डोर्सल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द venous system. So it has anterior cardinal system, posterior cardinal system or renal portal system. So posterior cardinal system also known as renal portal system. Renal means something that is related to kidney. Okay. Then next, hepatic portal system. Here veins collecting the blood from alimentary canal and related glands. So hepatic means liver. So hepatic portal system. Last one is ventral veins or ventral aorta. Okay, so here in venous system, deoxygenated blood from different parts return to heart by veins. तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या याद रखना है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 systems. फर्स्ट was arterial system, and this arterial system is for oxygenated blood from the gill to body parts, and second one is venous system, that is from the various parts of the body deoxygenated blood
return to the heart by veins. Now, first of all, we will know about the heart. So, heart of Scoliodon, it is a muscular tube above the pectoral girdle, or below, you can say below the pharynx also. Okay, so it is a muscular tube above the pectoral girdle, enclosed in a spacious pericardial cavity. हार्ट को हम वीनस हार्ट भी कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने इसके जस्ट पहले बताया वीनस सिस्टम के बारे में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बहुत सारी बॉडी के जितने भी वेरियस पार्ट्स होते हैं वहाँ से वापस हार्ट को जाता है. ठीक है, तो एक्चुअली इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है. दैट इज़ वाई इसको वीनस हार्ट या फिर ब्रैंकियल हार्ट भी कहते हैं. ब्रैंकियल हार्ट क्यों? क्योंकि ब्रैंकियल रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाता है. सो आइदर वीनस हार्ट और ब्रैंकियल हार्ट, दोनों में से कोई भी हार्ट इसको बोल सकते हैं. सो आप फिगर पे आ जाइए. आप आपको रेड कलर का दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पे जो हार्ट का फिगर है. सो रेड कलर की जो कवरिंग है दैट इज द pericardium. Okay, then after pericardium, that is the pericardial cavity. Okay, और उसके अंदर में आपको हार्ट नज़र आ रहा है. सो हार्ट में आप ऊपर से हम नीचे की ओर को आते हैं. ओके, तो सबसे ऊपर देखिए वेंट्रल एओर्टा है. वेंट्रल एओर्टा से कनेक्टेड होता है कोनस आर्टेरियोसस, and this conus arteriosus have other parts, that is the dorsal side से अगर हम देखेंगे तो हमें एट्रियम नज़र आएगा. उसका इरेगुलर शेप या रफली ट्रायंगुलर शेप आप कह सकते हो, एट्रियम. एंड देन साइनस विनोसस. सो साइनस विनोसस यानी कि एट्रियम की जो ओपनिंग होती है, साइनस विनोसस की जो ओपनिंग होती है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के थ्रू एट्रियम में ओपन होती है. ओके, सो एट्रियम के ठीक नीचे आपको दिख ही रहा है साइनस विनोसस. एंड सबसे लास्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है? ट्रायंगुलर शेप में कोनिकल वेंट्रिकल. ओके, सो ग्रीन कलर का एट्रियम एंड ब्लैक कलर में कोनिकल शेप में बिल्कुल नीचे की तरफ को आपको वेंट्रिकल नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट. अब हम आते हैं वेंट्रल व्यू पे, लेकिन ये वेंट्रल व्यू जो है थोड़ा एनलार्ज्ड भी है और साथ ही साथ इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ताकि हम अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें उसको भी क्लियरली समझ सके, देख सके. सो आप देखिए नीचे की तरफ हार्ट. अब हम नीचे से शुरू कर रहे हैं. ओके, नीचे से ऊपर की ओर को जाएंगे. सो कोनिकल फॉर्म में आपको जो वेंट्रिकल दिख रहा है, सो वेंट्रिकल के अंदर की तरफ ढेर सारे कॉर्डी टेंडिनी नज़र आ रहे हैं. ओके, सो इन्हीं कॉर्डी टेंडिनी के बीच में एवी अपर्चर रेड कलर का आपको एवी अपर्चर यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर नज़र आ रहा है. और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है एक्चुअली इट इज़ द opening of the atrium or auricle into the ventricle, which is actually guarded by a bilabiate valve. सो एट्रियम आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा है क्योंकि डॉर्सल साइड में एट्रियम होता है ना, और वेंट्रल साइड में वेंट्रिकल होता है. तो वेंट्रिकल अच्छे से नज़र आ रहा है. अब वेंट्रिकल के ठीक ऊपर आप जाइए तो देखिए कि आपको कोनस आर्टेरियोसस दिख रहा है ना. तो यहाँ पर वेंट्रल साइड में साइनस विनोसस क्लियर नहीं है. ओके, क्योंकि वो डॉर्सल साइड से ही दिखेगा. सो अब
कोनस आर्टेरियोसिस में आपको 6 सेमी ल्यूनर वॉल्व्स नज़र आ रहे हैं. So these 6 semilunar valves are present in 2 rows. So one rows में ऊपर के 3 हैं और नीचे के सेकेंड रोज में बाकी के 3 सेमील्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं. इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोनस आर्टेरियोसिस के ऊपर की तरफ और हम जाएंगे तो हमें वेंट्रल एओर्टा नज़र आ रहा है और इस वेंट्रल एओर्टा से आप देखिए कि फोर्थ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी नज़र आ रही है और कोनस आर्टेरियोसिस की साइड में फिफ्थ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी नज़र आ रही है. सो दिस फिफ्थ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी हैज़ अ कॉमन ओपनिंग which can be seen in the conus arteriosus. So this is all about the heart of the scoliodon. So सबसे पहले नंबर पे अब हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे. So the receiving part of heart is thin walled and elastic, है ना. तो जो रिसीविंग पार्ट होता है वो थिन वॉल्ड होता है और इलास्टिक होता है ताकि वो रिसीव कर रहा है अगर ब्लड को तो वो उसका सरफेस एरिया और इंक्रीज कर सके. दैट इज़ वाई इट्स वॉल इज थिन एंड इट इज़ इलास्टिक एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियरली इट हैज़ एन atrium and posteriorly it has an sinus venosus. अब देखिए ये जो साइनस विनोसस है ये एट्रियम में ओपन होता है जो कि उधर फिगर में भी हमने आपको बताया था. सो साइनस विनोसस में ओपन टू द एट्रियम with the help of sino-auricular aperture. So the sinus venosus is elongated chamber. Now second part is the forwarding part. फर्स्ट पार्ट क्या था, रिसीविंग पार्ट था, ब्लड रिसीव कर रहा था हार्ट. और सेकंड पार्ट क्या है, फॉरवर्डिंग पार्ट, यानी कि हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेंट्रल एओर्टा की 5 एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज द्वारा ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है. सो फॉरवर्डिंग पार्ट इज थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर. ये बहुत मस्कुलर होता है और थिक वॉल्ड होता है. इसकी वॉल जो है वो मोटी होती है. And it consists of anterior and posterior both parts. So anterior part में होगा conus arteriosus, which is a wide tube to the ventral aorta. AV aperture connect ventricle and auricle. Okay. So heart का posterior part is ventricle, which produces कोनस C for कॉर्डी caudy. टेंडिनी. सो उधर फिगर में भी आपको हमने वेंट्रिकल के अंदर ढेर सारे कॉर्डी टेंडिनी दिखाए थे. ओके. अब यहाँ पर देखिए ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में मतलब एट्रियम की ओपनिंग जो है वो वेंट्रिकल में होती है विद द हेल्प ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर. ओके. नाउ कम टू द थर्ड point. That is the heart contains only the non-aerated blood from various parts. तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स से जो नॉन एरेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड हार्ट में पंप टू द गिल. सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं या नॉन एरेटेड ब्लड होते हैं ये गिल को पंप कर दिए जाते हैं हार्ट के द्वारा फॉर द एरेशन, क्योंकि गिल की साइड में वाटर आएगा, एंटर करेगा. जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में आपको बताया था कि माउथ ओपन होता है एंड बकल कैविटी और फेरिंक्स पूरी की पूरी फिल हो जाती है ना. सो इन दैट वे गिल बाथ्स. तो एज सच ये जो ब्लड होता है नॉन एरेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गिल्स की ओर को जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए गिल के टिप तक
पहुंच जाता है. ओके, सो बट इट डज नॉट रिटर्न टू हार्ट. सो गिल से डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाता है. गिल से वापस से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये ब्लड जाता है. देन बॉडी से वापस से जब नॉन एरेटेड होता है यानी कि यूटिलाइजेशन हो जाता है ऑक्सीजन का, देन वेरियस पार्ट्स से वापस से हार्ट की ओर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है. सॉरी. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फाइनली The आफ्टरवर्ड्स blood circulate in a single direction. पहले हम इस पॉइंट को फिर से कंप्लीट कर देते हैं. थर्ड पॉइंट को, हार्ट कंटेन्स ओनली द नॉन एरेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड पम्प्स टू द गिल फॉर एरेशन बट डज नॉट रिटर्न टू हार्ट, goes to other organs. Okay, then finally मतलब afterwards venous blood किसको बोलते हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं या नॉन एरेटेड ब्लड होते हैं उसको हम वीनस ब्लड बोलते हैं. सो आफ्टरवर्ड्स वीनस ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स then again collected to heart. So blood circulation is unicircuit. Okay, unidirectional or unicircuit. Okay, अब आप इस फिगर में देखो, दिस इज द एज सच आप देखिए आर्टरीज हैं, दोनों ही आर्टरीज हैं. यानी कि आपको ए फिगर जो दिख रहा है दैट इज द एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी एंड बी में आपको क्या दिख रहा है? ईफरेंट आर्टरीज या ईफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज. तो ईफरेंट को मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहाँ पे मतलब है. ठीक है, सो आप देखिए कि ढेर सारे गिल्स आपको नज़र आ रहे हैं. 5 पेयर्स में गिल्स होते हैं. सो आप लेफ्ट साइड में देखिए गिल्स डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और उन दो गिल क्लेफ्ट के बीच में एक आपका एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जा रही है. ठीक है, सो टोटल मिला के देखिए तो 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स ऑफ Afferent. ब्रैंकियल आर्टरीज आर देयर. लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है वो बाइफर्केटेड होता है ना. तो कायदे से देखा जाए तो The first and second are फर्स्ट innominate bifurcation arteries हो जाता है arises. और बाकी के 3 और. सो टोटल 5 पेयर्स हो गए दोनों साइड में. So the इसके first अलावा and आप second pairs देखिए of afferent branchial arteries कुछ arise from the innominates. आर्टरीज हैं ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं. सो आप ये देखो, आपको इसमें ये समझना है कि एफरेंट और ईफरेंट ये दोनों लेटरल साइड में आकर के आपस में मिल जा रहे हैं, क्योंकि गिल दोनों ही लेटरल साइड में, इधर भी गिल प्रेजेंट है और इधर भी लेटरल साइड में गिल प्रेजेंट है. और दोनों ही तरफ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज भी जा रही है गिल को और ईफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज भी गिल की ओर को जा रही हैं. बस फर्क इतना है कि जो ईफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती है वो पूरा लूप के फॉर्म में होता है, केवल लास्ट वाला इनकम्प्लीट लूप होता है. तो आप देखिए फिगर बी राइट साइड में, इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो डॉर्सल एओर्टा है उस डॉर्सल एओर्टा से पहले एपी ब्रैंकियल्स ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, तो 1 2 3 4 है ना, 4 एपी ब्रैंकियल आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं. ओके, देन आगे जा कर के ये एपी ब्रैंकियल आर्टरीज जो है लूप के फॉर्म में जो दिख रही हैं, उन लूप्स को हम कैसे काउंट करेंगे? लूप का जो फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा होगा फर्स्ट ईफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, उसके नीचे वाला उसी लूप का दूसरा पार्ट जो होगा वो सेकेंड ईफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कहलाएगा. इस तरह से 4 लूप्स कंप्लीट हैं तो उनको हम 8 पेयर्स ऑफ कंप्लीट लूप के फॉर्म में
इफ्रेन ब्रैंकियल आर्टरीज बोलेंगे, जबकि लास्ट वाला इनकम्प्लीट होता है, यानी कि केवल हाफ लूप होता है. सो टोटल इस तरह से मिला करके 9 पेयर्स ऑफ इफ्रेन ब्रैंकियल आर्टरीज हो गए. नाउ इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि इफ्रेन ब्रैंकियल आर्टरीज जो है पहले एपी ब्रैंकियल्स से आगे जाके ओरिजिनेट हो रहे हैं. और ये एपी ब्रैंकियल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? डॉर्सल एओर्टा से. तो इफ्रेन ब्रैंकियल आर्टरीज में मेन ब्रांच क्या होती है? डॉर्सल एओर्टा. और जबकि एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में जो मेन ब्रांच होती है जिससे ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, दैट इज द वेंट्रल एओर्टा. और वेंट्रल एओर्टा हमने आपको हार्ट के ऊपर बताया था, है ना, कि हार्ट है मतलब वेंट्रिकल है, देन वेंट्रिकल के ऊपर साइनस विनोसस, साइनस विनोसस के ऊपर एट्रियम, एट्रियम के ऊपर कोनस आर्टेरियोसस होता है, और वो आगे कंटिन्यू कर जाता है वेंट्रल एओर्टा में. ठीक है, तो यहाँ पर एट्रियम से वो कोनस आर्टेरियोसस वाला पार्ट छुपा हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सल व्यू है. सो आपको एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज की मेन ब्रांच वेंट्रल एओर्टा ध्यान रखना है और इफरेंट की मेन ब्रांच डॉर्सल एओर्टा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. एट्रियल सिस्टम हो गया. अब हम सेकेंड सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं, दैट इज द वीनस सिस्टम. सो venous blood from entire body is returned to heart by the veins. तो veins होते हैं, that is why it is also known as venous system. Okay, so these veins have thin walls and frequently have valves to prevent backward flow of blood. तो जितने भी वेन्स होते हैं सब में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल्स क्या करते हैं कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं. ओके, सो कभी भी उल्टी तरफ को या बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है ब्लड का. यूनिसर्किट. ओके, मेनी वेन्स विदाउट डेफिनेट वॉल्स फ्रॉम वाइड स्पेसेस आर कॉल्ड साइनसेस. तो जो बहुत सारे वेन्स काफ़ी वाइड स्पेसेस के फॉर्म में होते हैं, उनको हम साइनसेस कहते हैं. एंड दिस सिस्टम और वीनस सिस्टम डिवाइडेड इन फॉलोइंग साइनसेस. तो ये कौन कौन से साइनसेस हैं? देखिए, पहला एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम, सेकेंड इज पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम. सो इस पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम को हम रीनल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं, यानी किडनी के आसपास का सिस्टम. ओके, जितनी भी वेन्स होंगी उसको हम बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम. देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि लीवर के आसपास वाला पूरी जितनी वेन्स होंगी, दैट में बी नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. देन फोर्थ नंबर पे है लैटरल एब्डोमिनल वेन्स. लैटरल एब्डोमिनल वेन्स के बाद लास्ट में फाइनली फिफ्थ नंबर पे है क्यूटेनियस सिस्टम. सो ये सारे पांचों तरह के सिस्टम्स मिल करके एंटीरियर कार्डिनल, पोस्टीरियर कार्डिनल, हेपाटिक पोर्टल, लैटरल एब्डोमिनल एंड आपका क्यूटेनियस सिस्टम, ये सब मिल करके वीनस सिस्टम बना रहे हैं. अब देखिए क्यूटेनियस सिस्टम में क्या क्या है. डॉर्सल क्यूटेनियस वेन, वेंट्रल क्यूटेनियस वेन, लैटरल क्यूटेनियस वेन. और ये जो लैटरल क्यूटेनियस वेन्स होते हैं, दीज आर बीनीथ द लैटरल लाइन कैनाल. तो फिशेस में लैटरल लाइन कैनाल होता है, लैटरल लाइन सिस्टम होता है, स्कोलिडॉन में भी होता है. सो उसी के पास में ये लैटरल क्यूटेनियस वेन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड these lateral cutaneous veins empties its blood into the branchial vein. तो लास्ट में क्या है? branchial vein. So all these are cutaneous system.
तो आप इस फिगर में देख सकते हो वीनस सिस्टम, दिस इज़ द फिगर ऑफ वीनस सिस्टम। तो इसको हम एनलार्ज करके पहले हम ऊपर वाले सिस्टम पे आते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ देखो ऊपर की तरफ में आपका एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम और कार्डिनल रीजन्स हैं। सो एंटीरियर कार्डिनल रीजन्स में क्या क्या आ जा रहा है, देखिए ये इंटर ऑर्बिटल साइनस बीच में एच शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एच का जो हॉरिजॉन्टल, एच का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है दैट इज द इंटर ऑर्बिटल साइनस, और इसके पास में आपको ऊपर की तरफ नेजल साइनस नज़र आ रहा है, उसके नीचे है ऑर्बिटल साइनस। देन उसके बाद और नीचे आप आओगे तो आपको वेंट्रल एओर्टा नज़र आ रहा है। हमने बोला था ना कि हार्ट नीचे की ओर को होता है, लेकिन उसके ऊपर वेंट्रल एओर्टा होता है, और उस वेंट्रल एओर्टा से ढेर सारे एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज यानी 5 पेयर्स ऑफ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वीनस सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाना है, ओके। तो बस वेंट्रल एओर्टा थोड़ा सा उसका पोर्शन दिख रहा है। नीचे की तरफ आपको वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड साइनस विनोसस ये सब नज़र आ रहा है। सो साइनस विनोसस के पास में आपको डक्टस क्यूवेरियस नज़र आ रहा है, और ऊपर की तरफ में वेंट्रिकल का ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ द कोनस आर्टेरियोसस, ओके। और इसी कोनस आर्टेरियोसस के ऊपर वेंट्रल एओर्टा कंटिन्यू करेगा। सो इसके अलावा इसी रीजन में ईसोफेजियल वेन्स भी आ जाएंगे। सो ये पूरा पार्ट हो गया आपका एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम। अब आते हैं हम पोस्टीरियर में, है ना। तो पोस्टीरियर को ही हम क्या बोलते हैं, और Renal portal system. पोर्टल सिस्टम, ओके। सॉरी, पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम हम पोस्टीरियर को बोले। तो यहाँ पे आपको किडनी नज़र आ रही है, और किडनी के साथ में आपको ढेर सारे इफरेंट रीनल वेन्स नज़र आ रहे हैं, है ना। और साइड में लेटरल एब्डोमिनल वेन्स हैं। उसी तरह से अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आप आ जाइए। दूसरी साइड में जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है उसमें लिवर आपको दिख रहा है, इंटेस्टाइन भी दिख रहा है, ठीक है। तो हिपैटिक साइनसेस प्रेजेंट हैं लिवर के पास में, एंड हिपेटिक पोर्टल वेन्स जो है ये पूरा कंटिन्यू कर रहा है इंटेस्टाइन तक। सो दीज आर द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीनस सिस्टम। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन है वो दो अलग अलग सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, दैट इज एट्रियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच।